So yesterday we discussed the 8 rules of equivalency uh, for the relational query. Now we are going to finish with these. So there is nothing much after the 8 queries, but I still would like to repeat the uh, rule number 7 and rule number 8. So let us start with the repetition of what is rule number 7. The rule number 7 says that the selection operation distributes over the theta join operation under the two conditions. So what is the equivalence? The equivalence is that the selection operation distributes over the theta join. What is the meaning of this? So have a look here, like I explained yesterday. So which is the first operation? The first operation is the theta join, and the second operation theta join between E1 and E2, and then we have the selection operation based upon some theta condition. तो पहले ज्वाइन हो रहा है और ज्वाइन के बाद आपका सिलेक्शन हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पहले ज्वाइन लगाते हैं देन यू विल हैव लार्ज नंबर ऑफ टपल्स। टपल्स जो हैं वो आपके बढ़ जाएंगे और आप इन लार्ज नंबर ऑफ टपल्स के ऊपर आप सेलेक्ट ऑपरेशन लगाएंगे विच विल रिजल्ट इनटू you can say more time. You have to spend more time on the selection operation. Now what does the distribution operation says? The distribution operation says that let us suppose जो आपने select operation लगाना है that only contains the attributes of relation E1. ओके जो आप सेलेक्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं दैट कंटेन्स ओनली द एट्रीब्यूट्स ऑफ E1 एंड नॉट द एट्रीब्यूट्स ऑफ E2। तो आपको जॉइन के ऊपर सिलेक्शन लगाने का जरूरत नहीं है, रादर देन दैट आप सबसे पहले सेलेक्ट ऑपरेशन लगा सकते हैं E1 के ऊपर एंड देन यू कैन अप्लाई द थीटा जॉइन विद E2। यानी हम इस टेबल में क्या चेंज कर रहे हैं? इस टेबल में ये चेंज कर रहे हैं कि सबसे पहले इस ट्री के अंदर क्या चेंज कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन ऑपरेशन लगाएंगे E1 के ऊपर एंड देन वी विल अप्लाई द थीटा जॉइन विद E2 which will result in lesser time. लेसर टाइम क्यों? बिकॉज जब हम लोग सिलेक्शन लगाएंगे E1 के ऊपर इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ टपल्स और रिड्यूस्ड नंबर ऑफ टपल्स के ऊपर जब हम लोग जॉइन लगाएंगे तो इट विल बी टेकिंग लेसर टाइम। सो दिस इज वन दैट वी हैव already discussed but we are repeating it. The second is when theta 1 involves only the attributes of E1 and theta 2 involves only the attributes of E2. तो इसका एग्जांपल भी आप एक बार देख लीजिए। जस्ट कंसीडर दिस वन। इसमें भी क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है? वो है थीटा जॉइन और हमारा सेकंड ऑपरेशन क्या है? सिलेक्शन। And selection is based upon some intersection on two conditions, that is theta 1 and theta 2. So first operation is join and second one is called intersection based upon two conditions. तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप पहले join लगाएंगे तो join will result into large number of tuples and then the selection operation will be implied on these large number of tuples which is wastage of time. अब वो कहना क्या चाहता है ऑथर कि ये जो आपने सिलेक्शन ऑपरेशन लगाना है थीटा 1 एंड थीटा 2 के ऊपर, जो एट्रीब्यूट्स थीटा 1 के अंदर हैं दे ओनली रेफर टू द रिलेशन E1
वेयर एज थीटा टू के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं दे रेफर ओनली टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन E2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप पहले सेलेक्ट ऑपरेशन लगा सकते हैं E1 के ऊपर बेस्ड अपॉन थीटा वन, एंड आप सिलेक्शन ऑपरेशन लगा सकते हैं E2 के ऊपर बेस्ड अपॉन थीटा। तो इससे क्या होगा? इससे रिमूव हो जाएंगे आपके अनवांटेड एट्रीब्यूट्स E1 में से भी, और रिमूव हो जाएंगे आपके एट्रीब्यूट्स अनवांटेड फ्रॉम E2 आल्सो। और उसके बाद जब मैं जॉइन ऑपरेशन लगाऊंगा तो इट विल टेक lesser time. So these are the two examples of selection operation distributes over the theta join operation. Something that we have already done yesterday, but I thought I should explain it to you again. So now we are ready to move towards the eighth equivalence rule. We already did it yesterday, and now we are going to repeat this. So let us consider this one. What does the rule number 8 says? It is projection operation distributes over the theta join operation. पिछला क्या था? Selection operation distributes. And now the only difference is कि selection की जगह पर मैंने projection यूज किया है या ऑथर ने यूज किया है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं E1 और E2 के बीच में जॉइन ऑपरेशन लग रहा है और उसके बाद प्रोजेक्शन लग रहा है L1 यूनियन L2। I hope I again repeat what is projection. Projection means we are going to consider only the limited number of attributes. Limited number of attributes. ठीक है, तो L1 and L2 are L1 and L2 are you can say part of E1 and E2। अब है यही समझना है। तो the author says that L1 is a set of attributes which is a subset of E1। यानी ये जो L1 है इट इज अ सबसेट ऑफ E1। यानी L1 में जितने भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो E1 में से आ रहे हैं, एंड L2 is a subset of E2। यानी L2 के अंदर जो एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम E। अगर ऐसा है तो रादर देन अप्लाइंग द join first and union and this projection later on, what we can do is first apply the projection and then apply the join. So there is a request by a student that they want to understand rule number 7। rule number 7 को वो समझना चाहते हैं। तो let's first go back to our rule number 7। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो लेट्स से रिलेशंस हैं, एक E1 है और एक E2 है। एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं वो। अब इसके अंदर लेट्स से आपके तीन एट्रीब्यूट्स हैं A, B एंड C, और इसके अंदर लेट्स से आपके एट्रीब्यूट्स हैं A, D एंड E। अब ये दोनों जो रिलेशंस हैं दे आर बेसिकली जॉइंड बाय A बिकॉज A इज अ कॉमन। अगर मैं इन दोनों के बीच में जॉइन लगा देता हूं तो व्हाट आई विल गेट इज A3 एंड A3 विल कंसिस्ट ऑफ A, B, C, D एंड E। आई होप इतना तो अभी तक आप लोगों को शायद समझ में आ ही गया होगा कि इफ आई हैव E1 एंड E2 एज टू रिलेशंस, और अगर मैं उन दोनों के बीच में जॉइन लगाता हूं तो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू गेट अ रिलेशन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एट्रीब्यूट्स फ्रॉम E1 एंड E2। अब
बेटा समझना ये है आपने कि अगर इसके अंदर इसके अंदर लेट अस सपोज 100 एट्रीब्यूट्स हैं और इसके अंदर भी बेटा अगर 100 एट्रीब्यूट्स हैं, अगर मैं पहले ज्वाइन लगाता हूं तो मुझे 100 एट्रीब्यूट्स और 100 एट्रीब्यूट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने सीधा ज्वाइन लगाया और E1 के अंदर भी 100 एट्रीब्यूट्स थे और E2 के अंदर भी 100 एट्रीब्यूट्स। और जब ये ज्वाइन लग के यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के ऊपर मैं सिलेक्शन लगाऊंगा। अब सिलेक्शन क्या होती है? बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। जैसे कि मैंने कहा सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000, तो पहले तो मैंने ज्वाइन लगा दिया। ज्वाइन लगाने से इतना बड़ा टेबल बन गया। अब इतने बड़े टेबल के ऊपर मैं कंडीशन लगा रहा हूं तो इट विल टेक सम टाइम। अब मुझे पता लगा कि ये जो मैं कंडीशन लगा रहा हूँ सैलरी ग्रेटर देन 10,000, तो ये जो सी एट्रीब्यूट है दिस इज द सैलरी एट्रीब्यूट, यानी इट बिलोंग्स टू E1। तो अगर मैं ये वाला रूल फॉलो करता हूं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलता है? सबसे पहले मैं सैलरी के ऊपर कंडीशन लगा दूंगा। अगर मैं सैलरी के ऊपर कंडीशन लगाऊंगा तो हो सकता है ये जो 100 एट्रीब्यूट्स हैं ये रिड्यूस होके 30 रह जाए। ये 30 क्यों रह गए? बिकॉज ओनली 30 एम्प्लॉयज हैव अ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। और अब अगर मैं इन दोनों के बीच ज्वाइन लगाता हूं तो इट विल टेक लेसर टाइम देन अगर मैं 100 और 100 के बीच में ज्वाइन लगाता हूं। आई होप दिस इज क्लियर। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टिल यू कैन आस्क मी। Yes, I am still waiting. Is it clear? So basically what we are doing is we are reducing the number of let's say tuples before applying the join operation. अगर हम लोग select पहले लगाएंगे और join बाद में लगाएंगे तो it will reduce the number of attributes जिसके ऊपर मुझे join लगाना है। तो let us move back to your rule number 8। अब ये भी यही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है कि अगर हमारे पास लेटस से E1 रिलेशन है और E2 रिलेशन है। अब मैं प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूं, ना कि मैं आपके टपल्स की बात कर रहा हूं। एट्रीब्यूट्स मींस हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ रिलेशन। तो अगर E1 के अंदर 20 एट्रीब्यूट्स हैं और E2 के अंदर भी 20 एट्रीब्यूट्स हैं, अगर मैं पहले ज्वाइन लगाऊंगा तो अगर इनमें से वन कॉमन है तो आप मान लीजिए ज्वाइन विल रिजल्ट इनटू अ रिलेशन विद 39 एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो 20-20 एट्रीब्यूट थे दोनों रिलेशंस के बीच में, एक कॉमन था और जब मैंने इन दोनों के बीच में ज्वाइन लगाया तो मुझे 39 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और उन 39 एट्रीब्यूट्स के ऊपर बाद में मैं प्रोजेक्शन जो है वो लगा रहा हूं। अब मुझे पता चलता है कि ये जो प्रोजेक्शन यूनियन लगाई है इसमें L1 बिलोंग्स टू E1 एंड L2 बिलोंग्स टू E2। तो वो कहना क्या चाहता है कि इससे कि आप ज्वाइन लगाओ, ज्वाइन लगाने से पहले ही आप प्रोजेक्शन लगा दो E1 के ऊपर और प्रोजेक्शन लगा दो E2 के ऊपर। इससे क्या होगा? इससे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो हैं आपके रिड्यूस हो जाएंगे। when the number of attributes will be reduced तो आप उसके ऊपर जब ज्वाइन लगाएंगे तो ज्वाइन will take less time. I hope this is clear to you. Okay. The second part of 8b is where you want to concentrate. This is the B part. तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। This is quite similar to the first one with a small difference. तो इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द स्मॉल डिफरेंस?
तो जो हमने पिछला एग्जाम्पल किया है उसमें हमने कंसीडर किया था कि एक L1 है और एक L2 है। तो इन दोनों को, जो L1 है दैट इज अ सबसेट ऑफ E1 एंड L2 इज अ सबसेट ऑफ E2। पिछले एग्जाम्पल में हमें सिर्फ इतनी बात ही बताई गई थी, लेकिन जैसा यहां पर बताया गया है L1 बिलोंग्स टू E1 एंड L2 बिलोंग्स टू E2, और हम इन दोनों के बीच में यूनियन भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक दो जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो और आ गए हैं, वन इज L3 एंड वन इज L4। नाउ L3 is a subset of E1. Okay, L3 is a subset of E1 and L4 is a subset of E2, but both of them do not belong to L1 union L2। देखिए ये चीजें थ्योरी में भी लिखी हुई हैं, जो ऊपर पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूं कि जो कुछ पिछले वाले एग्जाम्पल में था उसी को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर L3 एंड L4 नाम के दो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और एक्स्ट्रा आ गए हैं। L3 also belongs to E1 and L4 also belongs to E2, but they do not belong to L1 union L2। यानी इनको एक्स्ट्रा में डालना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा में कैसे डालना है? पिछली बार हमने यहां पर लिखा था प्रोजेक्शन ऑफ L1 विद E1, उसकी जगह के पर क्या आ जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ L1 यूनियन L3, क्योंकि L1 एंड L3 बोथ बिलोंग टू E1, प्लस द थीटा जॉइंट, और सेकंड में क्या आ जाएगा? L2, लेकिन इसमें भी यूनियन लगेगी L4। किसके ऊपर लगाना है? E2 के ऊपर, और इस सब के ऊपर लगेगा प्रोजेक्शन ऑफ L1 यूनियन L2। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर सिर्फ बात L1 और L2 की हो रही है तो आप 8A को फॉलो कर सकते हैं, और अगर L1 यूनियन L2 के बाद L3 एंड L4 भी आते हैं तो आपको ये वाला स्कीम जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। Now, what is the difference between on the left hand side and on the right hand side? Like I said, it is all about who takes lesser time। ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल आता है प्रोजेक्शन का, then only you should consider, otherwise there is no need for it। So let us move to your rule number 9, 10, 11. These are very basic rules, something that I am not going to explain, but obviously we are going to go through it। सबसे पहला क्या है? द सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कॉम्युलेटिव इन नेचर। कॉम्युलेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव E1 यूनियन E2, तो आप E2 यूनियन E1 भी लिख सकते हैं, एंड इफ यू हैव E1 इंटरसेक्शन E2, तो आप E2 इंटरसेक्शन E1 भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग हियर? द मीनिंग इज दैट दे बोथ आर कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप ऑर्डरिंग चेंज कर सकते हैं, और ऑर्डरिंग चेंज करने से आपकी आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, दैट द सेट डिफरेंस इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी अगर माइनस की बात चल रही है, E1 माइनस E2, then obviously this is not equal to E2 minus E1। तो आप यूनियन और इंटरसेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेट डिफरेंस पर अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द यूनियन एंड इंटरसेक्शन, अगेन दे बोथ आर एसोसिएटिव इन नेचर। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि जो आप ट्री बनाते हो ना, ये वाला ट्री बनाते हो कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है, अगर आप उसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर देते हैं, इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ इट, तो भी आपकी आउटपुट के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है आगे पीछे करना,
और एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि ऊपर नीचे करना, पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको, तो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले E1 और E2 के बीच में यूनियन होगी, एंड देन जो भी आंसर आएगा उसकी E3 के साथ यूनियन होगी। और अगर मैं इसको ध्यान में रखता हूं तो ये कहता है कि पहले आप E2 और E3 के बीच में यूनियन कर दीजिए और फिर जो भी आंसर आएगा उसका E1 के साथ यूनियन कर दीजिए। चाहे मैं लेफ्ट फॉलो करूं चाहे मैं राइट फॉलो करूं, द आंसर विल बी same. So that means the set operations union and intersection, they both are commutative and associative as well. Okay, and what about the next one? The next one says that the selection operation distributes over union, intersection and select difference. तो इसका मतलब क्या है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। लाइक आई सेड, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। यहां पर सिलेक्शन ऑपरेशन लगा है बेस्ड अपॉन सम थीटा कंडीशन बिटवीन E1 माइनस E2, यानी पहले हम लोग E1 माइनस E2 करेंगे। मैं यहां पर नीचे बना देता हूं क्लियरली, E1 माइनस E2, यानी हमारा पहला काम क्या है कि हम लोग E1 माइनस E2 करेंगे, फिर उसके ऊपर सिलेक्शन ऑपरेशन लगाएंगे बेस्ड अपॉन सम थीटा कंडीशन। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी पहले E1 के ऊपर अलग से सिलेक्शन ऑपरेशन एंड E2 के ऊपर भी अलग से सिलेक्शन ऑपरेशन एंड देन अप्लाई द माइनस। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरह से आप ये वाला एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहले वाले और इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है दैट इन द सेकंड वन द थीटा only belongs to E1 and it does not belong to E2, यानी इसीलिए E2 के आगे सिलेक्शन नहीं लगाया है और सिर्फ E1 के आगे ही सिलेक्शन लगाया है। I repeat why this statement is different from this statement, because in this example the selection operation, the attributes only belong to E1. So that is it. ये चीजें आप ऑलरेडी पहले रूल्स में कर चुके हैं। कॉम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूट क्या है, एंड व्हाट इज द लास्ट वन? द लास्ट वन सेज दैट द प्रोजेक्शन ऑपरेशन ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द यूनियन, यानी आप प्रोजेक्शन ऑपरेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए, तो ये कहता है कि आप E1 और E2 के बीच में पहले यूनियन लगाइए और फिर उसके ऊपर प्रोजेक्शन लगाइए बेस्ड अपॉन सम रूल, बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स L। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन कैन आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दैट मींस आप पहले प्रोजेक्शन लगाइए, दैट मींस प्रोजेक्शन ऑन E1 एंड प्रोजेक्शन ऑन E2 and then you can apply the union. This is called distribution. ठीक है, अगर आपका कोई भी ऑपरेशन है जो दो रिलेशंस के ऊपर इस तरह से लगता है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस दैट वी हैव। इसको 12 बार एक्सप्लेन किया गया है, तो इसका मतलब क्या है, those 4 operations are repeated over 3 different set of operations। और वो 4 operations कौन से हैं? commutative, associative and then distribution। ठीक है, so we have another one that is 8b। so we have another one that is called 8b। so let me explain it with the help of an example. Let us suppose we have two relations R1 and R2, and R1 has attributes like A, B, C and D, and on the right hand side we have something like
E, F, G एंड H। ठीक है, इसमें A को भी डाल देते हैं because there is a common attribute. Please focus on this. I am going to give you one complete example. अब यहाँ पर देखिए, दिस इज कॉल्ड R1 की जगह इसको E1 और इसको E2 ले लेते हैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए। ये इसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी हम सिर्फ L1 और L2 की बात करेंगे बेटा, अभी हम किसी और की बात नहीं करेंगे। लेट अस सपोज L1 मींस A एंड B, A एंड B ओनली। ठीक है, तो A एंड B इज अ सबसेट ऑफ E1। ठीक है, A को रहने देते हैं, यहां पर हम लोग B एंड C को ले लेते हैं, B एंड C। बेटा ध्यान से देखिए, ये जो L1 है, L1 विच इज B एंड C, दे बोथ बिलोंग टू E1। इसमें से B एंड C जो है वो E2 में नहीं आता है, बात खत्म। सो दैट मीन्स L1 विच इज B एंड C इज अ सबसेट ऑफ E1। दूसरा ले लेते हैं बेटा E एंड F। E एंड F जो L2 है, E एंड F, इट इज अ सबसेट ऑफ E2, यानी कि ये आपका E1 में नहीं आता है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को जोड़कर यानी L1 यूनियन L2 कर देता हूं, तो मेरे पास एक नया रिलेशन आ जाएगा E3 विच विल कंसिस्ट ऑफ B, C, E एंड F। राइट, तो बी सी ई एंड एफ बन गया। अब मेरी कंडीशन क्या है कि मुझे उसने कहा कि इसके अंदर अब आप L3 और L4 को भी इंक्लूड कर लीजिए। नाउ L3 इज D एंड L4 इज H। Now L3 which is D, it is a subset of E1, and L4 which is H is a subset of E2. But they both do not belong to the L1 union L2। ये देखिए, जो हमने पहले L1 यूनियन L2 की थी, ये उसको बिलोंग नहीं करते हैं। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ 8B। यानी पहले हमने L1 बनाया विच इज अ सबसेट ऑफ E1, फिर हमने L2 बनाया विच इज अ सबसेट ऑफ E2। उन दोनों का यूनियन करके हमें एक आंसर भी मिल गया। उसके बाद देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू ऐड L3 एंड L4, एंड L3 एंड L4 आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ L1 एंड L2। जैसा मैंने बोला, ये अब आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा बहुत बार होता है, आप जब काम कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें आपको करनी पड़ती हैं। दीज ऑल आर सिचुएशन डिपेंडेंट। और आप जब कंपनी में काम करते हैं तो